We've had a very different season this time. We've had a very different season this time. और in इस that, वक्त अलग अलग मौसम हमने देखे. For the first time, I've realized so many of our people have gone out for Christmas and New Year. और पहली बार मैंने ऐसे देखा कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो क्रिसमस के लिए और न्यू ईयर के लिए बाहर गए. All right, and we have finished now 2 messages on the church vision. और कलीसिया का जो दर्शन है इस नए साल के लिए, इसके लिए हमने 2 संदेश बांटे हैं. And today is the last message on church vision for 2025. और आज ये अंत वाला संदेश है जो हम बांटने वाले हैं कलीसिया के दर्शन But पर. I'm trusting that the rest of us will pass this on because we need to lay hold of something for this year. और मैं विश्वास करती हूँ कि जो हम अभी बांटेंगे और जो आपसे परमेश्वर बात करेगा वो आप बाकी सबसे भी बांटेंगे. All right, so can we just pray this morning as well as we come to God's word? आइए हम प्रार्थना करते जैसे हम परमेश्वर के वचन के और आते हैं. Oh Lord, Father, we just want to thank you for your presence. We want to thank you that you are here with us. Lord, even though we are missing many of the members of the church here and there, we want to ask you, Lord, that your hand will be with us this morning as well. We want to pray for those who've been missing over the last 10, 15 days. Lord, they will catch into all that you are leading us through, Lord, in this time. And I pray this morning that your hand will be with us. Your grace will be with us. Your anointing will be with us. We need you. We want your word, Lord, for you said it's not by might or power, but by your spirit. And so we ask you by your spirit that you will challenge, you will stir us, you will Lord, grant us vision, grant us release, grant us freedom to move into the things of God. We pray this in Jesus' name. Amen. All right. Okay, so what an exciting to hear these testimonies this morning. It's so exciting, isn't it? और इस सुबह जैसे हमने गवाहियां सुनी, कितने प्रोत्साहित हुए हम सब. All right, lovely to hear about Pankaj and Bali's new house. Fabulous. बहुत अच्छा लगा पंकज और बाली का जो नया घर है उसके बारे में जानकर. Lovely to hear about Raksha's healing. और रक्षा आंटी की जो चंगाई हुई है उसके बारे में जानकर भी खुशी हुई. Pray. और प्रार्थना करते रहिए. I also lovely to hear about what's her name, Renju. This comes into the realm of obedience. और रेंजू के गवाही हमने सुनी जैसे उसने आज्ञा पालन किया उसके बारे में. And so we've been looking at our vision this year. और जैसे हम इस नए साल का जो दर्शन है उसको देखते हैं. We saw on Christmas Day the first message. और क्रिसमस के दिन पर जो हमने पहला संदेश सुना. From you, O Bethlehem, a ruler of the earth is coming. और बेथलेहेम के यहाँ से एक राज करने वाला आएगा. We saw it wasn't just a baby in a manger, but a ruler of all the earth. और ऐसे नहीं कि एक बच्चा है जो अभी पैदा हुआ है, पर वो जो राज करेगा. And his rule, like this morning in these testimonies, his rule is experienced and felt. और उनका जो राज्य है उसे महसूस किया जाता है और उसे जाना जाता है. And in Isaiah 9 verse 7 it says, of the increase of this government, of the increase of this rule, of this ruler of the earth, there will be no end to it. और जैसे यशाया 9 उसके 7वें वचन में कहता है कि इसका जो राज्य है वो बढ़ते ही रहेगा, उसमें कोई अंत नहीं होगा. Isn't it exciting hearing testimonies and recognizing the ruler is ruling? और जैसे हम ये गवाहियां सुनते हैं इससे और प्रोत्साहित होते कि ये जो राज करने वाला है उसका राज्य है, जारी है, वो उसका अंत नहीं हो रहा. Is it exciting or not? क्या वो आपके लिए भी प्रोत्साहित है? Yeah. But here we saw the second part in there. The ruler has a remnant of people. और जैसे हम दूसरे भाग में देखते हैं उस वचन के कि जो राज्य करता है उसे अपने लोगों के बारे में भी सोचता है. And he will rule through the remnant. और वहां से उनके लोगों के द्वारा वो राज्य करेगा. That's us, the church. और वो हम है कलीसिया. So the remnant has a very big part to play. और हमारा इसमें बहुत बड़ा भाग है जो हमें निभाना है. Amen. Amen. And we saw on Christmas Day they will be due
upon the earth and showers on the grass. और जैसे हमने वचन देखा क्रिसमस के दिन पर कि वो जो ओस के समान आएंगे और घास की तरह रहेंगे। The ruler rules, जो राज्य करने वाला है वो राज्य करता है, but he's got a remnant. पर उसके लोग हैं उसके And साथ, he's going to bring his rule through this remnant और उसका जो राज्य है वो इन लोगों के द्वारा लाएगा, like dew ओस from के the earth. समान Amen. पृथ्वी पर। And we saw that we are called to be dew on the earth. और हमने देखा कि हम सबको ओस के समान परमेश्वर ने बुलाया है पृथ्वी पर। But we also saw they will be, this remnant will be lion-like. और हमने देखा कि ये शेर के समान रहेंगे ये लोग, All right, knowing the authority they have in the name of the Lord Jesus. और जो अधिकार उनके पास है यीशु मसीह के नाम में, वो ये जानेंगे उस अधिकार They को। will be dew, but they are lion-like, knowing, wow, I've got authority in the name of Jesus to bring this dew upon the earth. और ये वो जानते कि वो ओस के समान है, परंतु वो शेर के समान भी है जो अधिकार के द्वारा इस पृथ्वी पर लाएंगे, परमेश्वर का जो अधिकार है वो। And I felt for us this year, we need to realize afresh the authority we have in the name of Jesus. और मुझे ऐसे महसूस हुआ कि यीशु मसीह के नाम में जो अधिकार हमें मिला है, उस अधिकार को हमें समझना है और जानना है। And I believe this year we're going to lay hold of the authority of Jesus' name like never before. और मैं विश्वास करता हूँ कि इस अधिकार को हम पकड़ने वाले इस नए साल में और इसे जानने वाले हैं और नजदीक से। Can someone say amen? कोई आमेन कहेगा? I hope you know what you just said amen to. आप जानते हैं आपने आमेन क्यों कहा है? Right? Oh, everyone else said amen. Let me say सबने amen. कहा इसीलिए आपने नहीं कहा ना आमेन। All right. The authority of Jesus' name is with you. यीशु मसीह के नाम में जो अधिकार है वो आपके पास है। And we will have testimonies of healing. और ऐसी गवाहियां चंगाई की हम और सुनेंगे। We will have testimonies of financial and house breakthroughs. और जो आर्थिक परिस्थिति है वहां भी हम परमेश्वर की गवाहियां We will सुनेंगे। have testimonies of those who's probably forgotten how to walk with God. God raises them up to hear of Renju this morning was so exciting. और ऐसी गवाहियां सुनेंगे जहां पर लोगों ने परमेश्वर के साथ चलना शायद भूल गए हैं या नहीं चल रहे, वो फिर से चलने लगे परमेश्वर के साथ। ऐसी भी गवाहियां सुनेंगे इस साल। That's the rule of God. ये परमेश्वर का राज्य है। Are you excited? क्या आप प्रोत्साहित है? Amen. आमेन। I want to encourage you in this vision not to be people who just stroll in sometimes on a Sunday. No, run to the house of God. और ऐसे लोग नहीं बने इस नए दर्शन में कि हम बस कलीसिया में आ रहे हर रविवार, परंतु हर दिन हम परमेश्वर के पास दौड़ते हुए जा रहे हैं। You are his remnant. आप उनके लोग हो। He wants to use you. और आपका इस्तेमाल करना चाहता है We are not परमेश्वर। just coming here to be blessed and to speak about testimonies. और हम यहाँ पे सिर्फ आशीषित होने के लिए नहीं आ रहे और गवाहियां देने के लिए नहीं आ रहे। The Christmas message we saw, there's a ruler that's come. He wants to bring his rule, but through you, the remnant. हमने संदेश देखा क्रिसमस के दिन की एक राज्य करने वाला है और वो अपना राज्य लेकर आने वाला है, परंतु वो आपके द्वारा वो राज्य लेकर आने वाला है। Amen. आमेन। Don't attend church. Start being the dew of the earth. सिर्फ कलीसिया आने वाले लोग ना बनो, परंतु वो ओस के समान बनो जो परमेश्वर कहता है वचन में। Amen. आमेन। Can you tell your neighbor, please, I want to remind you, be dew of the earth. आइए हम अपने बाजू वाले को कहते हैं कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप वो ओस के समान बनो पृथ्वी पर। Be the dew. Amen. आमेन। And so, all right, and we saw lion-like. और हमने देखा Lion-like. शेर के समान। Yeah, so somewhere I want to lift our vision this year. और इस अपना जो दर्शन है उसे हमें आगे लेकर आना है, That this उठाना है। this is for all of us. और ये हम सबके लिए है। God is looking for a whole church यीशु एक पूरी कलीसिया को देख रहा who है will be lion-like जो शेर के समान रहेंगे and make a difference. और एक बदलाव लाएंगे। I'm so excited to see giants. मैं गायल्स को देख के बहुत खुश हूँ। After many years, बहुत साल बाद
You know, but I was talking to him. I said, Giles, I don't want you attending here. Are you ready to do something? और मैंने उससे कहा कि सिर्फ कलीसिया आने के लिए नहीं, पर क्या आप प्रोत्साहित हो परमेश्वर के लिए चीजें करने के He's लिए? saying, count me in, uncle, count me in. और उन्होंने I'm कहा there. कि मैं हूँ आपके साथ. Amen. आमेन. But I'm looking that all of us will be saying that, count me in, Lord, count me in. You can count me और in. मैं ये I will be देखना the dew. और मैं ये देखना चाहता हूँ कि हम सब ये चीज कहे कि मेरी भी गिनती करो, मैं भी इसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ. Amen. The Amen. greatest call upon our lives is not just to get the blessing, but to be the dew. जो बड़ी बुलावट है हमारे जीवन पे वो ये नहीं है कि सिर्फ आशीष पाए, परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा वो ओस के समान रहे पृथ्वी पर. Amen. आमेन. Then we saw और हमने देखा on New Year's Eve, the second message और न्यू ईयर के दिन in Micah 6:1, it says, hear now what God says. मिका 6 उसका पहला वचन कहता है कि ये सुनो जो परमेश्वर कहता है. Hear now what the Lord says. सुन प्रभु क्या कहता है. And then we spelled out our vision. और फिर हमने अपने दर्शन को देखा. Where God said, arise and plead your case. और उन्होंने कहा उठ पहाड़ों में सम्मुख अपने पक्ष प्रस्तुत कर. We saw prayer. The first thing in our vision is prayer is not just, chalo, let's have a prayer time. No. और पहली चीज हमने देखी वो है प्रार्थना करना. और वो ऐसा नहीं कि आओ मिलकर हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं. It's not about just making a prayer time. It's not about a duty to pray. और ये कोई ड्यूटी नहीं है, ये प्रार्थना का समय सिर्फ बिताना वो नहीं है. It's about being the dew of the earth. परंतु ये ओस के समान रहना पृथ्वी पर, इसके बारे में है. But if you want to be the dew of the earth, the first thing is plead your case. और जैसे आपको वो करना है तो आपको परमेश्वर के सामने अपनी बात रखनी है. And we saw that God has given us a legal case by which we can plead to him. और परमेश्वर ने हमें वैसा एक लीगल केस दिया है जहां पर हम परमेश्वर के पास लेकर आ सकते हैं अपनी जो भी बातें हैं, प्रार्थनाएं हैं. God doesn't act on his own whims. Suddenly he feels like blessing us because we are praying. No, he's saying, have we understood? We have a legal case to call upon him as the judge of the earth and bring the answers down. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ परमेश्वर ने हमें बुलाया है और हमारी सिर्फ प्रार्थनाएं सुनता है और आशीष देता है, परंतु वो एक केस के समान है जो परमेश्वर के पास आता है और वो अधिकार है परमेश्वर के पास. उस अधिकार के द्वारा वो आशीषित करता है और चीजें करता है. Amen. आमेन. Amen. And if you're going to be the dew of the earth, there has to be a lot of this pleading our case. और हमें परमेश्वर के सामने आना है और अपनी जो चीजें उसे रखनी है, बहुत बार बार रखना पड़ेगा शायद, और वैसे ओस के समान बनने के लिए. And it's lovely to hear one of the first testimonies this year of Renju is pleading the case. He's saying, I'm back to praying for 3 hours and 4 hours. That's amazing. और जैसे गिड़गिड़ाना हो परमेश्वर के सामने, उस तरीके से वो आ रहा है परमेश्वर के सामने. जैसे रेंजू की गवाही हमने सुनी. You see, one of the things we'll discover is we've got things to stand in front of God for and say, God, thy kingdom come. और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें परमेश्वर के सामने लाना है और परमेश्वर को कहना है कि इसमें परमेश्वर आपका राज्य आए. And it's an exciting place. और ये एक बहुत प्रोत्साहनजनक समय है. Prayer is not a duty, it's a joy. I will bring these to my holy mountain and give them joy in the house of prayer. और ये सिर्फ ऐसे ड्यूटी नहीं है जो हम रोज करना है, परंतु ये आनंद की बात है जब परमेश्वर का राज्य आए चीजों पर. How many of us want to be the dew? रहना चाहते And हैं. here's the first thing. और ये पहली चीज है, Plead your case. आपकी जो केस है वो परमेश्वर के सामने This year, गिड़गिड़ाए. your prayer life has to take on a whole new form. और आपकी जो प्रार्थना का समय है एकदम ही नया दौर होना चाहिए, नए तरीके से होना चाहिए इस साल में. Amen. आमेन. Akash on the ship, pray. आकाश, जब शिप पर जाओगे तो प्रार्थना करना. Raju at the airport, pray. एयरपोर्ट पे राजू प्रार्थना करना. God will give you a sphere wherever you are.
और परमेश्वर आपको उसका राज्य देगा और चीजें करने देगा Amen. जहां आप होगे वहां। So we saw the first thing. This is illegal transaction. और ये एक कानूनी तौर पर हम एक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं परमेश्वर के सामने। How do you stay in your homes? आपके घरों में आप कैसे रहते हैं? Because you've got a legal agreement that says that is your home. क्योंकि एक कानूनी तौर पे आपके पास है चीजें जो कह सकते हैं कि आप उस घर में और उस परिवार का हिस्सा है। And God wants us to know we've got a legal case to seek Him because He will give, but He wants to see, do we understand our rights and will be और trained? परमेश्वर चाहता है कि हम उसको समझे, वो कानूनी तौर को समझे, उस अधिकार को समझे, और परमेश्वर देना चाहता है, पर वो चाहता है कि हम उसको जाने। Amen. आमेन। So many of us, you can move in healing. और हम में से बहुत सारे लोग हैं जो चंगाई में आगे बढ़ सकते हैं, दुष्ट आत्माओं को भगाने में आगे बढ़ सकते हैं, परंतु उसके लिए आपको प्रार्थना करना जरूरी है। But the proof of genuine prayer और जो प्रार्थना है जो पूरे दिल से हुई है, is not about what we do. और ये इसमें नहीं है कि हमने क्या किया, It's about who we become. वो इस बारे में कि हम क्या बन रहे हैं। Amen. आमेन। That God is not looking for external things we do, because many will say, I heal Jesus in your name, and Jesus will say, I don't know you. और परमेश्वर ये नहीं देख रहे कि बारी तौर से हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर अंत में कहेगा कि मैं आपको जानता ही नहीं। But the proof of genuine prayer जो दिल से शिद्दत से प्रार्थना की है हमने, उसके is बारे that में we will become, number two, a people who love obeying God. और वो दिखेगा हमारे जीवनों में से जब हम ऐसे लोग बनेंगे जो परमेश्वर को की आज्ञा का पालन करेंगे। We will walk in His commandments and His ways. That's what prayer is. उनके तरीके से, उनके आज्ञा को पालन करने के और पे चलेंगे। We saw Micah 6:6. It says, what shall I come before the Lord with? Sacrifices? Only external things? और मिका 6 उसका 6वां वचन कहता है कि मैं परमेश्वर के पास सिर्फ बलिदान लेकर आऊंगा। Okay, so obedience. And then we saw और फिर हम देखते हैं in Micah 6:8, मिका 6 उसका 8वां वचन, He has shown you, O man, what's good. और उसने ओ मानव प्रभु ने तुझे बताया है कि उचित क्या है, And what does the Lord require of you? और वह तुझसे क्या चाहता है, But to do justly and to love mercy. यही ना कि तू न्याय सिद्धांत का पालन करे। That means this is the problem with Israel. They wanted thousands of sacrifices, things that were external. और इजराइल जो लोग थे वो उनके तरह की, वो सिर्फ चाहते थे कि भारी तौर से बहुत बलिदान करे और चीजें करे। But he saw पर उन्होंने देखा that they were not acting justly, they were not fair, and they were not merciful. परंतु करुणा नहीं थी, परमेश्वर ने देखा और न्याय नहीं था वहां पर। Amen. आमेन। And one of the characteristics of all our families और हमारे जो हमारे बारे में जो है, परिवार के बारे में जो है, characteristics of our house groups, जो चरित्र है हमारे परिवार के बारे में और घर की सभाओं के बारे में, of the church, और ये जो भाव है प्रार्थना का आज्ञा पालन करने का, वो होना चाहिए, और न्याय होना चाहिए। justice. न्याय होना That चाहिए means there's a love for righteousness. और प्रेम होना चाहिए परमेश्वर के न्याय के लिए, धार्मिकता के लिए। But how do we bring it about? और वो कैसे लाएंगे? By being merciful. हमारे अंदर करुणा होनी चाहिए। Not banging the commandments on people. ऐसे आज्ञा का जो आज्ञा है वो लोगों के ऊपर ऐसे डालते हुए नहीं। Amen. आमेन। So are you ready for this vision? This year we're not looking at a quantitative vision, but God says be due. How do we due? These things are very critical on becoming the dew of the earth. और ये है दर्शन जो हम देख रहे हैं इस नए साल में, और हम कैसे वो ओस के समान बने पृथ्वी पर इन तरीकों से। Amen. So Amen. Can you just quickly break up and share with someone what have you got so far in these two messages? आइए हम छोटे गुट में आकर बांटे कुछ जो हमने अभी तक लिया परमेश्वर से, परमेश्वर ने जो बात किया। You can turn around maybe with 2, 3, छोटे 4, गुट बनाए आप। Take 2-3 minutes to ऐसे share. मुड़ सकते हैं, मुड़ के छोटे छोटे गुट बनाए। What do you got?
Okay, come, let's turn around. आइए हम फिर से मुड़े आगे की ओर। Great. Come, you can just turn around, sit in your groups if you want, but just turn around here. आइए हम मुड़ के आगे की ओर देखिए। Okay, today I want to bring the third and final message. और तीसरा जो अंतिम संदेश है वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। Okay, in Micah 5 verse 10 to 15, और मीका का 5 उसका 7 से 10, it goes on to say something. और वो कहता है, And God says, in that day. और परमेश्वर कहता है उस दिन। So you've got at the beginning और हम देखते हैं जैसे शुरुआत में the ruler of the earth and his remnant. और जो राज्य करने वाला है वो और उसके लोग। And then we saw plead your case. और फिर हम देखते हैं जैसे अपने जो केस है वो गिड़गिड़ा Mercy कर and लाए justice. और न्याय और करुणा हो। But in between, God says something और उसके about बीच में his people. परमेश्वर कुछ कहता है He अपने says, लोगों के बारे में। And it shall be in that day. प्रभु कहता है उस दिन मैं तेरे मध्य से। This is a section that's in between both these. और ये मध्य में है, ये बीच में है। And it speaks about God's the ruler. He wants us to be the dew, but in the middle something's there. और परमेश्वर कहता है कि वो राज्य करने वाला है और यहाँ पे ओस के समान हमें रहना है, परंतु उसके बीच में कुछ है जो परमेश्वर कहना चाहता है। Something's happened to God's people and God's got to do something to them. और कुछ हुआ है परमेश्वर के लोगों के साथ और परमेश्वर उनके साथ कुछ करना चाहता है। All right, and they've gone astray. और वो इतर बितर हो गए हैं। They know this amazing promise. और वो ये अद्भुत जो वचन है वो वाचा है वो जानते हैं। They know what they're called to be. और वो जानते हैं कि उन्हें किस चीज के लिए बुलाया गया है। But they're distracted. They've gone elsewhere. They've gone off course. परंतु वो इतर बितर हो गए हैं। Now,
and they've stopped और वो रुक गए हैं, from being the dew. वो ओस के समान बनने के बन नहीं चल सकते क्योंकि वो रुक गए हैं And बीच when में। we stop being the dew, और जैसे हम ओस के समान बनना रुक जाते हैं, we prevent God's rule from coming down. और परमेश्वर का जो राज्य है वो पृथ्वी पर आने के बीच में हम बाधा बन जाते हैं। And so we must be aware as God's people, as the church today, और हमें एक परमेश्वर के लोग होने के द्वारा, कलीसिया होने के नाते हमें ये जानना है और समझना है that we don't fall into what they fell into. और वो जिन चीजों में वो गए वैसे हमें नहीं करना है। There's something key to take the vision of being the dew. और कुछ मुख्य बात है जो हमें जानना है ताकि हम ओस के समान बने। Imagine there's a traveler on a path to a particular destination. और ऐसे कोई यात्रा करने वाला है जिसे एक जगह पर पहुंचना है, But the road is full of pits and obstacles and debris and signs pointing other directions. और परंतु रास्ते में ऐसे है कि जो चिन्ह है वो इधर उधर गलत दिशा दिखा रहे हैं और बीच में बहुत सारी बाधाएं हैं। And it actually shows what our spiritual journey to be on the dew on the earth is, that the road is cluttered with obstacles and signs pointing this side and that side. और ये हमारी जो आत्मिक जीवन है इसके बारे में बताता है कि परमेश्वर हमें कहाँ लेकर जाना चाहता है ओस के समान बनने के लिए, परंतु बीच में बहुत सारी बाधाएं हैं और चिन्ह है जो इधर उधर गलत दिशाएं दिखा रहे हैं। And God addresses his people in verse 10 to 15. और यहाँ परमेश्वर उन चीजों के बारे में और उनके लोगों के बारे में कहता है, saying we've got to remove these obstacles, और कहता है कि ये जो बाधाएं है इसे हमें निकालना है। things that are leading them astray from becoming the dew of the earth. जो चीजें हैं जो आपको अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं उन्हें हमें हटाना है। And it shows God's heart to tear down anything that competes for our trust and devotion. और हर चीज जो हमें परमेश्वर के विश्वास की ओर नहीं लेकर जा रहा है वो परमेश्वर का हृदय दिखाता है जो चीजों को निकालना चाहता है। So let's look at Micah 5 verse 10 to 15. तो आइए हम मिका का 5 उसका 10 से 15 वचन देखते हैं। All right. And it shall be in that day, declares the Lord, I will destroy your horses. I want you to don't switch off when you're hearing these words. I will destroy your horses from among you and demolish your chariots. और Verse परमेश्वर 11. कहता है, Okay. परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे देश के सब नगरों को नष्ट कर दूंगा, मैं तेरे देश के सब किलों को खंडहर बनाऊंगा। I will destroy the cities of your land and tear down all your strongholds. और तुम्हारे देश के सब जो नगरे हैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। I will destroy your witchcraft and you will no longer cast spells. और मैं तेरे हाथ के जादू टोना समाप्त कर दूंगा, तेरे यहाँ भविष्य कल बताने वाले जीवित नहीं रहेंगे। I will destroy your idols and your sacred stones from among you. You will no longer bow down to the work of your hands. और मैं तेरे मध्य से देवताओं की मूर्तियों को पूजा स्तंभ ध्वस्त कर दूंगा। Verse 15, I will take vengeance in anger and wrath on the nations that have not obeyed me. और जो राष्ट्र में मेरे आदेश का पालन नहीं करता है उनसे मैं भयंकर क्रोध में बदला लूंगा। And so here we are going to look at how Israel went astray and how are we to guard against what they did. और हम यहाँ देखते हैं कि कैसे इजराइल के लोग इतर बितर हो गए और अलग दिशा में चले गए और हम परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें वो नहीं करना है। Okay, so the first thing God says to them, I will destroy your horses and your chariots. और पहली चीज जो परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे यहाँ के जो घोड़े हैं उन सबको मैं नाश कर दूंगा। Now, are you still with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Yeah? Anyone with me still? आप सुन रहे I हैं? need to get a response, otherwise सुन I'm रहे not हैं? sure. Okay. Now, horses and chariots signified that Israel trusted in their military might and strength more than in God. और जो घोड़े थे और घुड़सवार थे उनके पास, उनसे दिखता है कि उनकी जो लड़ाई करने के जो लोग थे उनमें वो कितना सामर्थ्य था और विश्वास था। There was a time they trusted in God, but now their trust has shifted
to their own military might. और एक समय था जहाँ पे उनका विश्वास परमेश्वर पर था, पर अब उनका जो विश्वास है वो उनके घुड़सवार और घोड़े और कितने लोग हैं उन पर है। Though they needed to have an army, but their trust was never to be in the army. और उनके पास एक सेना होना जरूरी है, परंतु जो उनका विश्वास है वो सेना पर नहीं होना चाहिए। Their trust had to be in God. उनका जो विश्वास है वो परमेश्वर पर होना चाहिए। And we can see in Deuteronomy 20 verse 1, और ड्यूटरोनोमी 21 उसका 7वां वचन कहता है, this is what God says to them. और परमेश्वर उनसे कहता है, Okay, it's so important. This is given right in the time of the law. और ये जब न्याय बना था, नियम बना था, तभी परमेश्वर ने कहा था। When you go to war against your enemies, और जब आप लड़ाई करने जाओ तो दुश्मनों के पास, and you see horses and chariots, और आप घोड़े और घुड़सवार उन सबको देखो, and you see an army greater than yours, और आप ऐसी सेना देखो जो आपकी सेना से भी बढ़कर है, do not be afraid of them. आपको डरना नहीं है, Because the Lord your God, क्योंकि आपका जो परमेश्वर है who brought you out of Egypt, जिसने आपको मिस्र देश से निकाला he है, will be with you. वो आपके साथ होगा। Amen. आमेन। So right in the law, God told them, listen, you need an army, but you will face armies stronger than yours. Your trust is not in your army, it's in me. I will be with you. तो शुरुआत में ही परमेश्वर उनसे कहा था कि आपके पास एक सेना होगी, घुड़सवार होगा, परंतु आपका जो विश्वास है वो उन पर नहीं, मेरे पर होना चाहिए। And God demonstrated it throughout, you see, the Old Testament. और आप जैसे वचन पढ़ते हो, आप देखते हो परमेश्वर ने इसे दर्शाया है बार बार। Amen. आमेन। With Gideon. गिडियन के साथ, He used Gideon और परमेश्वर ने गिदोन का इस्तेमाल किया to lead just 300 of his men. सिर्फ 300 लोगों की अगुवाई करने के लिए, And they defeated an army of thousands. और उन्होंने ऐसी एक हजारों की लोगों की सेना को हरा You दिया। see, in that moment, God did something to Gideon और उस समय में, उस क्षण में परमेश्वर ने गिदोन के जीवन में कुछ किया, where they had 20,000 men. जब उनके पास 20,000 लोग थे, And God made them send almost 19,700 back. और परमेश्वर ने कहा कि 19,700 लोगों को फिर से वापस भेज दो। And God was seeing, और परमेश्वर देख रहा था was Gideon's trust in the 20,000 क्या गिदोन का जो विश्वास है वो 20,000 लोगों पर है, or in God, what he says. या परमेश्वर पे है और परमेश्वर के वचन पर है। And with 300 men, और 300 लोगों के साथ they defeated an army of thousands. उन्होंने एक Hallelujah. ऐसी सेना को हराया जो 1000 के लोगों में थे। Amen. आमेन। So there was a time Israel trusted only in God, not their army. और एक ऐसा समय था जब पे इजरायली लोग अपने घुड़सवार और सेना पे विश्वास नहीं कर रहे थे, परमेश्वर पर विश्वास कर रहे But थे। now their पर अभी- trust has shifted. पर अभी उनका जो विश्वास है वो बदल गया है, वो घुड़सवार और सेना पर चला Are गया you है। with me? क्या आप मेरे साथ हो? God's given them a big army. और परमेश्वर ने उन्हें एक बड़ी सेना दी है, God's given them a blessing. उन्होंने आशीष किया है, But now they trusted more in the blessing, और उनका जो विश्वास अभी है वो जो आशीष मिली है उस पर हो गया है, not in God. परमेश्वर पर नहीं। And we have to be careful when we get blessings, और हमें ऐसे ध्यान रखना है जब हमें आशीष मिलता है, because suddenly our trust can shift to the blessing. क्योंकि अचानक हमारा जो विश्वास है वो आशीष पर चला जाता है। And it speaks to us today too. और ये आज के जीवन में भी हमसे बात करता है ये वचन, Where is our trust? कि हमारा जो विश्वास है वो कहाँ है, And very often it's on the things we want to hold, उन पर हो जाता है विश्वास। things that make us feel more secure. ऐसी चीजें जो हमें सुरक्षित महसूस करवाती है अंदर से, There is our material security, जो चीजें हमारे पास है, सामान है, उन सब चीजों पर personal achievements, जो हमने अपने जीवन के द्वारा हासिल किया है, उन our चीजों पर, wealth and resources, maybe our bank balances. जो हमारे पास पैसे है या जो भी है हमारे पास, वो सब चीज सोना या जो है उन चीजों पर। Are you still with me? क्या आप मेरे साथ हो अभी भी? So that God has blessed us with these things. और इन सब चीजों से परमेश्वर ने हमें आशीष किया है, But is that our trust now? पर हमारा विश्वास क्या उन चीजों पर है? The world talks about rely on yourself, no one else can help you.
और दुनिया ऐसे कहती है कि अपने आप पर ही विश्वास करो, कोई और तुम्हारी मदद नहीं करेगा। And if we end up going that route, और हम भी अगर उन रास्तों पर चलने लगे then we rely on ourselves because no one else can help you. Not even the church will help you. तो Nobody. फिर हम ऐसे सोचेंगे कि हमें अपने ही सामर्थ्य से चीजें करना है, कोई और हमारी मदद नहीं करेगा, कलीसिया भी नहीं करेगा। We begin to trust our abilities, और हम हमारे क्षमताओं पे हम विश्वास करने लगते हैं, our education, हमने जो पढ़ाई लिखी की है उन पर विश्वास करने लगते the हैं, contacts we made on social media. और जिन लोगों को हम जानते हैं उन पर विश्वास करने लगते हैं, That's where our confidence is gone. और वहां हमारा विश्वास चला जाता है, And our trust in God has come down. और परमेश्वर पे जो विश्वास है वो कम होते जाता है। See, God wants us to be careful, और परमेश्वर चाहता है कि हम इन चीजों का ध्यान रखें, not to shift our dependence. हमारा जो हम जिस पर निर्भर होते हैं वो इधर उधर ना हो जाए। Here is where we lose this vision of being the dew. और तब हम ये जो ओस बनना है इससे हट जाते हैं, इस दर्शन से हट जाते हैं। When our trust shifts to our own resources. जब हमारा विश्वास है वो हमारे चीजों पर आ जाता है और परमेश्वर पर नहीं, We then have no message. और फिर कोई एक संदेश नहीं होता है, Our message then is no different from what the world is saying. और हमारा संदेश जो दुनिया कहता है उससे कुछ अलग नहीं होता है फिर। Amen. आमीन। I've told this testimony of a businessman in our church maybe 15-20 years ago. और एक गवाही मैंने बांटी है 15-20 साल पहले की, जहाँ पे एक बिजनेसमैन के बारे में। He had got into a huge debt. और एक बड़ा कर्जा हो गया था उन पर, Right, about 15 lakhs or something like that. कुछ 15 लाख का था वो कर्जा, And he felt he couldn't repay it, so he had to go to Dubai. और उनको ऐसे लगा कि वो ये कर्जा नहीं चुकता कर पाएंगे, इसीलिए वो दुबई चले गए And थे। so he just went to Dubai. और वो दुबई गए He worked a whole year एक साल के लिए, and he wasn't able to repay anything. और तब भी कुछ भी कर्जा है वो उन्होंने नहीं चुकता And one day he किया। was praying before God in Dubai. और जब दुबई में एक दिन वो प्रार्थना कर देते And God परमेश्वर asked से, him, और परमेश्वर ने उनसे पूछा, who asked you to come here? किसने कहा तुम्हें दुबई आने के लिए? And he quickly said, Lord, I'm sorry. और उन्हें परमेश्वर के सामने माफी मांगी, And he came back to Mumbai. और वो वापस आए मुंबई, He repented, उन्होंने माफी मांगी, came पश्चाताप back किया, to Mumbai. मुंबई आए। And I don't know how, but in the next 6 months, his entire loan और was मुझे cleared नहीं up. पता कैसे, पर 6 महीने उसके बाद उनका पूरा कर्जा चुकता हो गया। What are the horses and chariots in your life? और तुम्हारे जीवन में ऐसे कौन से वो घोड़े हैं और घुड़सवार है? Is it career advancement? क्या आपका जो करियर है वो अच्छा हो And we उसके बारे die में है? with blinkers. Parents also for their children, blinkers. ऐसे I बस can only एक ही see चीज that. पर ध्यान दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। माता पिता भी बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर रहे कि एक ही Where's चीज God पर in ध्यान है। कहाँ परमेश्वर है? Somehow God's kingdom and God's church is irrelevant. I've got to do what the world does. Career is it. That's what तो I'll do. परमेश्वर का जो राज्य है, परमेश्वर की चीजें है, वो उस पर ध्यान नहीं होता है, उस पर कोई मूल्य नहीं होता है, बस जो दुनिया कहती है और करियर है और इन चीजों पे ध्यान जाता है। This is an amazing thing. God gives us our way as well. और जो अद्भुत बात है ये कि परमेश्वर जो हम चाहते हैं वो चीजें करने दे देता है हमें। All right. So we see that. और ये हम देखते हैं। You know, he says, I will destroy your strongholds and cities. और परमेश्वर कहता है वचन में कि तुम्हारे नगरों में जो चीजें उनको नाश कर दूंगा You see, मैं। places like Jerusalem and Jericho were strongholds. They were cities, but they were strongholds. They were fortified like fortresses. और यरूशलेम और जेरिको ऐसे जगह थे जो बहुत सुरक्षित थे, और उनकी जो जगह थी वो बहुत अच्छे से सुरक्षित की गई थी। They had high walls and defensive structures against any invasion. और बड़े बड़े दीवार ऐसे बनाए थे ताकि उन्हें बचाया जाए, कुछ हानि नहीं आए उन पर। And God only asked them to do those और things. परमेश्वर ने ही कहा उनसे ये सब So करने के why लिए। does he want to demolish them? और परमेश्वर क्यों चाहता है वो उन चीजों का नाश करे? Because क्योंकि their trust went into the stronghold. क्योंकि not उनका into जो God. विश्वास है वो उन सुरक्षित जगहों पर, चीजों पर चला गया था और परमेश्वर पर नहीं। Psalm 18 verse 2 says this. भजन संहिता 8 उसका दूसरा वचन कहता है The Lord is my rock, कि परमेश्वर मेरी चट्टान है, my fortress, मेरा धाड़स है, my stronghold. मेरी Amen. मजबूत गढ़ है। Amen. आमेन।
Who is your stronghold? आपका मजबूत गढ़ कौन है? The Lord. परमेश्वर। He may give you a good bank balance, but that's not your stronghold. वो आपको अच्छी आमदनी देगा, परंतु वो आपका मजबूत गढ़ नहीं है। Amen. आमेन। So it speaks today of career and status, where each of us sometimes find our identity is in these things. और ऐसी जो करियर के बारे में हम बात करते तो हम में से बहुत सारे लोग हैं कि हमारी पहचान उसमें ढूंढते हैं, And we don't realize that these things can crumble overnight. और हमें ये महसूस नहीं होता कि ये चीजें रातों रात नाश हो सकती है। I remember, for those of us who remember the Gulf War, way back in the 80s, I think. ये 1980 के टाइम पर जब ऐसे गल्फ में लड़ाई हुई All right, थी, people had gone there, and Kuwait was invaded by, was it Iraq, right? और कुवैत और इराक में ये लड़ाई हुई थी, And overnight, people lost their homes, they lost their bank balances, they had to flee back to India overnight. और There was no रातों money. रात लोगों का घर नाश हो गया था, उनकी जो आमदनी है वो चली गई थी, और रातों रात उनको वहां से वापस आना पड़ा And I था want इंडिया to में। challenge us. और मैं आपको चुनौती देना See, in चाहता a हूँ, moment, God can show you what's your stronghold. और एक क्षण में परमेश्वर आपको दिखा सकता है कि आपका जो मजबूत गढ़ In है a वो क्या moment, है। God can shut down our bank balances. एक क्षण में परमेश्वर हमारी जितनी भी आमदनी है, बैंक बैलेंस है, वो सब बंद कर Let सकता it है, not come to that. और वो समय तक ना आने दो। Make sure in your heart आप there is देख, only one stronghold. He is the Lord my God. आप ध्यान रखो कि आपका जो हृदय है उसका मजबूत गढ़ परमेश्वर ही हो, Because Jesus says, God says here, I will destroy these strongholds. और परमेश्वर कहता है कि अगर आप किसी और चीज को मजबूत गढ़ बनाओगे तो मैं उसका नाश कर दूंगा। All right? That means God will actually bring us into situations where these strongholds are pulled down in our lives. और परमेश्वर ऐसे परिस्थितियों में हमको लाएगा जहां पर ये जो मजबूत गढ़ हमने बनाए हैं उसे वो नाश कर दे। See, sometimes people have someone who they trust on so much. और ऐसा होता है जीवनों में लोगों के कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर वो ज्यादा विश्वास करते हैं, And suddenly God brings that person down. और अचानक परमेश्वर उन लोगों को नीचे लेकर And आता our है, hope that's been in that person suddenly gets और shaken. हमारी जो आशा उन लोगों पर है वो इधर उधर चली जाती है। May not come to that. उस परिस्थिति Right? तक ना आने But दो, even if it does, और अगर वो आए भी उस remember परिस्थिति तक, this. आप ये याद रखो God's actually acting in your life. कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहा He's है। pulling down a वो- wrong stronghold. वो ऐसे गलत मजबूत गढ़ है उनको नीचे गिरा रहा है। Amen. आमेन। No one really wants to say amen to that. कोई आमेन नहीं कहना चाहता। So it's not, if God says, I will destroy, it's not even us doing it, it's God sovereignly working in our lives like this. और जैसे परमेश्वर कहता है कि मैं नाश करूंगा तो वो ही नाश करेगा, हमारा उसमें नहीं है, परंतु परमेश्वर अपने प्रभुता में उसे नाश करेगा। And sometimes when we are praying and pleading our case before और God, कभी कभी जब हम प्रार्थना कर रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं परमेश्वर के सामने, let us also simultaneously know in our hearts, Lord, while I'm wanting this, is it a stronghold also in my life? और ये हम जाने कि जब हम ये चीजें चाहते हैं क्या ये मेरे जीवन में मजबूत गढ़ बन चुका है? Lord, am I being very obsessive about this? क्या मैं इन चीजों के बारे में ही सोचने लगा हूँ? Because God delays, isn't it? You pray, but it doesn't. The answers don't come क्योंकि because God परमेश्वर refines strongholds in our hearts. क्योंकि परमेश्वर हमारे हर प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है, कुछ प्रार्थनाओं को देरी लगती है, वो इसीलिए क्योंकि वो ऐसे मजबूत गढ़ नहीं चाहता है जो गलत है हमारे जीवन And में। when you're praying for things, और जब आप प्रार्थना करते हो चीजों के लिए, please learn when the answer doesn't come, the provision doesn't come. और आप ये सीखो कि जब आपको उत्तर नहीं आता है, चीजें नहीं मिलती है, Learn in those moments in your prayer, saying, Lord, you are my provider. You are my और stronghold. परमेश्वर के पास आओ और सीखो कहने के लिए कि परमेश्वर आप मेरे मजबूत गढ़ हो, आप चीजें दे दोगे मुझे जब देना हो। Amen. आमेन। Amen. आमेन। You see, when things don't come, what do? और जब चीजें नहीं आती है, प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं? How do you show your dependence on God? और कैसे हम हमारा जो निर्भरता है वो परमेश्वर पर दिखाते हैं इस समय में?
We can go and run to someone who will say, no, you've got to get this blessing. Keep praying for the blessing. या हम ऐसे लोगों के पास भाग सकते हैं जो आपको कहे कि नहीं, आपको ये आशीष मिलना ही चाहिए और प्रार्थना करते ही रहिए इनके लिए, And it still doesn't come. और वो फिर भी नहीं मिलती है, Because God is pulling down a stronghold. क्योंकि परमेश्वर ऐसे गलत मजबूत गढ़ है उनको नीचे गिराना चाहता है, नाश He करवाना wants चाहता your है। dependence. वो चाहता है कि आप परमेश्वर पर ही निर्भर रहे। You know, Matthew 6:33 says this. और मत्ती 6 उसका 33 कहता है, Seek first his kingdom and his righteousness, पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो and all these things will be given to you as well. और सब चीजें आपको दी जाएगी। Amen. आमीन। You see, when things are not coming, और जब चीजें नहीं आती है, नहीं मिलती है, you know they should come. आप जानते हो कि उसे आना है, You know it is God's will to give you, और परमेश्वर की इच्छा है कि आपको वो मिले, but it's not coming. पर वो नहीं आ रही है। And it's possibly because of your dependence. और ये शायद इसीलिए हो सकता है क्योंकि आपकी जो निर्भरता है, That you're saying, God, without this I can't live. और आप ऐसे कह रहे हो शायद इसके बिना मैं जी नहीं I'm सकता, depressed. और मैं नहीं जी I'm सकता, discouraged. और मैं निराश Please हूँ, give it to me. You promised it to me. कृपया करके मुझे दीजिए क्योंकि आपने मुझसे वचन किया था, And still doesn't come. और वो फिर भी नहीं आता। And you know this is dependence. और तब आप जानते हो कि ये निर्भरता है। Matthew 6:33. मत्ती 6 उसका Lord, 33, even if it doesn't come, और वो फिर भी नहीं आए, परमेश्वर you are my provider. आप फिर भी मुझे चीजें देने वाले हो, I know it will come. और मैं जानता हूँ कि वो आएगा। But this verse is telling me something. पर ये वचन मुझसे कहता है, Seek first the kingdom of God परमेश्वर का जो राज्य है उसे खोजो and his righteousness. और उसके धार्मिकता को खोजो। What are those things in your heart? क्या क्या चीजें आपके हृदय में, That while you're praying जब आप प्रार्थना करते for the हो blessing, आशीष के लिए, are you consciously, when you're praying, are you conscious? What is those areas of righteousness ऐसी कौन सी जगह है धार्मिकता की that I need to put first in God's? परमेश्वर के सामने जो रखना है, मेरे जीवन में जो क्षेत्र है उसे Maybe रखना it है। is just making sure no matter what comes in your agenda, you're saying, Lord, whatever comes, I'm going to be with your people at every meeting that I need to be. और ये हमें कहना है कि कुछ भी हो और कुछ भी चीजें आए, फिर भी मुझे हर एक सभा में रहना है और आपके लोगों के साथ रहना है। Amen. आमीन। Lord, your word says, my house will be called a house of prayer. I've not even been at prayer meetings. और मैं आपका वचन कहता है कि मेरा जो घर है वो आपके प्रार्थना का घर कहलाना चाहिए, परंतु ऐसा मैं एक भी प्रार्थना सभा में भी नहीं जा रहा हूँ। God's saying, I want to bless you. और परमेश्वर कहता है कि मैं आपको आशीषित करना But the चाहता way हूँ, you've been treating your children has been obnoxious. पर जैसे आप अपने बच्चों के साथ व्यवहार कर रहे हैं वो बहुत गलत है, You've not been fair in your home. और आप आपके घर में न्याय नहीं ला रहे। Seek first his righteousness. पहले उनकी You धार्मिकता see, को खोजो। we're called to be the dew. और हमें बुलाया गया ताकि हम ओस के समान And रहे, when we pray for blessing, God wants to give it. और जब हम आशीष के लिए प्रार्थना करते तो परमेश्वर देना चाहता है, But this righteousness, obedience परं- is very critical. परंतु आज्ञा का पालन करना धार्मिकता के बारे में भी Amen. होना चाहिए हमारा जीवन। Amen. आमेन। God pulls down strongholds. परमेश्वर ऐसे मजबूत गढ़ जो गलत है उसे नीचे गिरा देता है। Practice इसे प्रैक्टिस कीजिए just to surrender yourself every day to God. ताकि रोज हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन को When रखें, things don't come, just say, Lord, I trust you. और जब चीजें नहीं भी आती है, नहीं होता है, तो भी हम विश्वास करें कि परमेश्वर मैं आप पर ही विश्वास करता हूँ, I'm not going to seek other means to get और this. मैं अलग अलग तरीकों के पास अलग अलग चीजें नहीं करूंगा, I'm going to do what is right. और मैं वही करूंगा जो न्याय है, जो सही है। Amen. आमेन। And share और ऐसे बांटो with trusted friends or some of the leaders ऐसे दोस्त के साथ, ऐसे अगुओं के साथ जिन पर आप विश्वास करते हो, what God's convicted you about. ऐसी कौन सी चीज है जिससे परमेश्वर आपके सामने ला रहा है अपने See, जीवनों के Jesus बारे said, में। where 2 or 3 gather, I'm there. और परमेश्वर का वचन कहता है जहाँ And 2 और 3 लोग हैं वहां पर मेरी would love to उपस्थिति see. है। You see, one of the greatest things of the kingdom coming is in 2s and 3s. और सबसे बड़ी महान बात है परमेश्वर के राज्य को आने के बारे में, वो है वो 2 और 3 लोगों के बारे में है।
when we're able to share. जब हम बांटते हैं एक दूसरे And से। I'd like to see this year. और इस साल में मैं ये देखना चाहता I हूँ, want to raise this question. Who can you give an account to? ऐसे कौन है जिसके सामने आप जैसे लेखा जोखा रख सकते हैं अपने जीवन का। Things are not going well in your work. Who are you giving an account to? आपके काम में चीजें ठीक से नहीं हो रही है तो आप किससे बांट रहे हो। Maybe you're not getting a job. Who are you giving an account to? शायद आपको काम नहीं मिल रहा है तो वो आप किससे बांट रहे हो। What is that area of righteousness that needs to come in your life? ऐसा कौन सा क्षेत्र है धार्मिकता का जो आपके जीवन में आना चाहिए। Amen. आमेन। God is pulling strongholds down. परमेश्वर ऐसे गलत मजबूत गढ़ को नीचे गिरा रहा है, And when He pulls them down, और जब वो ऐसे नीचे गिराता है you'll be like the dew. तब आप उस ओस के समान बनोगे। Amen. आमेन। See, it's not just about healings. और ये सिर्फ चंगाई के बारे में नहीं है। We have been predestined to be conformed to the image of Jesus Christ. हमें परमेश्वर ने ऐसे बनाया है ताकि हम उसके रूप समान हो। Amen. आमेन। You are predestined for what? और वो परमेश्वर की इच्छा है, वो क्या है? To become like Jesus. कि यीशु जैसे बने हम। Your life will display His righteousness. और यीशु की जो धार्मिकता है वो दर्शाए हमारे जीवन के द्वारा। All God's people said. और परमेश्वर के लोग कहे Amen. आमेन। I'm not doing the second part, which we'll do later. I thought I could finish it. और But जो it talks about idols. I'll bring down your idols. We'll do that next time. और दूसरा जो भाग है वो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, जो मूर्ति पूजा के बारे में कहता है। आइए हम खड़े होते हैं।